Inertia, you have already seen what is inertia. Inertia हमने उसमें पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, याद आ रहा है? नाउ लॉ ऑफ इनर्शिया is basically that a body remains in the state of rest or in the state of uniform motion. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन लिखना बहुत जरूरी है. A body remains in the state of rest or uniform motion until unless an external force is applied. ये था लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, फिर हमने इनर्शिया को भी डिफाइन किया था. इनर्शिया क्या होता है, राइट? Inertia is basically property by virtue of which a body remains in the state of rest or motion, or you can say that it is a property by virtue of which a body resists the change in the state of motion or rest or direction. जैसे कि अगर कोई बस खड़ी हुई है and you are sitting inside the bus and the bus all of a sudden start moving, तो फिर क्या होगा? तो अगर बस स्टार्ट मूव कर हो जाती है तो वी टेंड टू गो बैकवर्ड, द अपर बॉडी टेंड्स टू गो बैकवर्ड. बिकॉज का रीजन क्या है? दैट अपर द एंटायर the bus is in the state of motion, the lower body in contact with the bus, it comes in motion immediately. लेकिन जो upper body है, it tries to be in the state of rest, so we tend to go backward. But after some time क्या होगा? The entire bus would be in uniform motion. जो speed बस की होगी वही speed हमारी हो जाएगी. And all of sudden अगर बस ब्रेक्स लगाती है तो फिर क्या होता है? The bus applies brakes, then yes, when V is 0, the bus will come to rest, lower body will also come to rest immediately. लेकिन upper body is still in the motion, so upper body will tend to fall forward. So this was inertia of motion. So this was inertia जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था. और मेजर ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हमें कैसे पता लगेगा किसका इनर्शिया कम है किसका ज्यादा है? Measure of inertia is mass. Measure of inertia is mass. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास. तो ये सारा था इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन में. ठीक है, इट वाज इन ट्रांसलेशन. और बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, उसमें हमने सारा ये डिस्कस किया था. सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन में है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है. Whatever role is played by inertia in translatory motion, the same role is played by moment of inertia in rotational motion. लिखो. the role played by the role played by inertia the role played by inertia in translatory motion, the role played by inertia in translatory motion is is the same is the same as is the same as that of moment of inertia in rotational motion, is the same as that of moment of inertia in rotational motion. तो वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में प्ले करता है. ना रोटेशनल मोशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. So the role of moment of inertia
is the same as that of inertia and translatory motion. Rotational motion में वही role वो play करता है. Now suppose this is axis and this is some point mass m. इस point mass का distance r है from this axis. Suppose ये body इस axis के ओर rotate कर रही है. This is a particle of mass m which is rotating about this axis. ठीक है? तो this is a point mass which is rotating about this axis. अब what is the formula for moment of inertia? Moment of inertia we represent by I. And moment of inertia is mr square. Moment of inertia is mr square. लिख लो. If you have a point mass m जिसका distance axis से r है, तो उसका जो moment of inertia होगा that will be mr square. It is a scalar quantity. It has no direction, that is, its unit is kg meter square. Its unit is kg meter square. हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1l2t0, बिकॉज टाइम तो आ ही नहीं रहा इसमें. m1l2t0 विल बी. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड कर रहा है वो भी देख लो जरा. फैक्टर्स ऑन विच I depends. I is moment of inertia. फर्स्ट फैक्टर क्या है? मास. तो फॉर्मूले में आ रहा है मास है ना. द फर्स्ट फैक्टर इज मास. मोर द मास मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिख लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. लिख लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट. एम पे डिपेंड कर रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. मास कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. दूसरा क्या है? आर. आर इज perpendicular distance of the mass from the axis. जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है. तो यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. और दूसरा फैक्टर क्या है? एक और चीज है यहाँ पे. मान लो दो मासेस इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे ये दो पॉइंट मास है, ठीक है, लेकिन इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क. डिस्क में क्या था? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये एक्सिस है सपोज. दूसरा मैंने ले लिया रिंग. रिंग में क्या होगा? सारा का सारा मास एच पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा. ये रिंग है. सपोज दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का मास भी सेम है. इसका रेडियस आर, मास एम. इसका भी रेडियस आर और मास एम.
both the masses, both the disk and the ring, they have the same mass, same radius. तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्क और रिंग में क्या फर्क है? डिस्क में मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि रिंग में मास सिर्फ एट द एज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क होता है 1/2 mr², ये इसका फॉर्मूला है। जबकि रिंग का डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। लिख लो ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस, जो किसके परपेंडिकुलर भी है, सेंटर से पास कर रहा है, इज ½ mr², जबकि रिंग में इट इज mr² होता है। मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, उनके मासेस इक्वल हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिफरेंट है, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब थर्ड पॉइंट वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन of mass about the axis। तो तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के अराउंड मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर डिपेंड करेगा। So these are the three factors on which moment of inertia of a body depends। पॉइंट मास का mr² है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग में भी मास एज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक्सिस से बहुत दूर है। तो जितना मास एक्सिस से दूर होगा, उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², रिंग का mr² होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कई सारे पार्टिकल, एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? लिखो नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rigid body, moment of inertia of a rigid body consisting a number of particles, consisting of number of particles। तो ये डेरिवेशन 2 मार्क या 3 मार्क का आ सकता है। एक डायग्राम बना लो। एक रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस है, these are the point masses m1, m2, m3, m4, mn। So this body is made of large number of particles। डायग्राम बनाओ, फिर लिखेंगे इसके बारे में। संडे को आंसर शीट लेगा ना नन्हे, ठीक है? ओके सर। फिजिक्स मैथ्स दोनों का लेके आना, क्वेश्चन पेपर भी लेके आना। तो ये मार्क्स लोएस्ट होंगे पूरी क्लास में, मुझे लग रहा है।
यस सर। ये मार्क्स तो लोएस्ट होंगे पूरी क्लास में। सर सबसे सबसे कम नहीं, बट हाँ, वन ऑफ देम। तो ऐसा क्या करा तुमने, समझ में नहीं आई बात मुझे। 10 मार्क के तो डेरिवेशंस ही होंगे, तुम कर सकती थी वो डेरिवेशंस। सर डेरिवेशन सिर्फ एक बैंकिंग और फ्रूट की ही थी। वो कर ली थी। यस सर। कितने मार्क की थी वो? वो 2-3 मार्क की थी शायद। उसके अलावा कुछ नहीं किया मतलब तुमने फिर? तो लिखो, कंसिडर कंसिडर अ रिजिड बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी consisting of consisting of point masses consisting of point masses m1, m2, m3 dash 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 mn, consisting of point masses m1, m2, m3 dash dash mn. The distances from axis, आगे लिखो, the perpendicular distances, the perpendicular distances from axis of rotation, the perpendicular distances from axis of rotation are R1, R2, R3 dash dash Rn respectively. The perpendicular distances from the axis of rotation are R1, R2, R3 dash dash Rn respectively, as shown in diagram. As shown in diagram. आगे लिखो, moment of inertia of the body, moment of inertia of the body will be, moment of inertia of the body will be equal to, moment of inertia of the body will be equal to sum of moment of inertia will be equal to sum of moment of inertia sum of moment of inertia of constituents particles, sum of moment of inertia of constituent particles. लिख लिया? यस सर। भव्य को क्या हुआ, आज क्लास में नहीं है? सर पता नहीं। उसकी वजह से तो एक रोटेशनल करा रहा हूं मैं। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द बॉडी विल बी, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर है ना, बिकॉज पहला पॉइंट मास m1 है, उसका डिस्टेंस r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर हो गया। सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर, एंड देन फाइनली mn rn स्क्वायर। तो पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पार्टिकल का,
सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने ऐड कर दिया। लिख लो इसको। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको बिना डायरेक्शन के सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। तुमने सबको ऐड कर दिया। आई कितना हो जाएगा, इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन MI RI² आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन MI RI²। तो हमें बेसिकली करना ये है, जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनका डिस्टेंस एक्सेस से निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो मास से, फिर ऐड कर दो। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अगर किसी बॉडी में बहुत सारे मासेस हैं तो सब मासेस का डिस्टेंस एक्सेस से निकालना पड़ेगा। उस डिस्टेंस वो हो जाएगा R, और MR² सबके निकाल के ऐड करने हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ डिस्क्रीट बॉडी। इन केस यू हैव अ कंटिन्यूअस बॉडी जिसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, उस केस में हम ये वाले पार्टिकल्स नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। समेशन बिकम्स इंटीग्रेशन, और हो जाता है फॉर्मूला R²dm। इंटीग्रेशन R²dm ले लेता है। ये कैसे हो पाता है, आई टेल यू। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस है, तो यहाँ पे एक मास ले लिया dm, उसका डिस्टेंस r ले लिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला R²×dm, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मतलब होता है समिंग अप, एडिंग अप, समेशन। So that's how you can find moment of inertia of a continuous body जिसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि अब डेरिवेशन कोर्स में नहीं आएगा, बट थ्योरेटिकली में फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को यूज करके भी हम R²dm से वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इस फॉर्मूले पे बेस्ड। सपोज यू हैव 2 पॉइंट masses। एक मास है सपोज 10 kg, दूसरा मास है मान लो 25 kg। Question is find moment of inertia of the system about axis number 1, second है about axis number 2, and third is about axis number 3। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। लिख लो, डायग्राम बनाओ पहले, ड्रॉ द डायग्राम। क्या भव्य, तुम कहाँ खो गई थी? सर कहीं नहीं थी। अच्छा। सर मोमेंट, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन भी आ रहा है, पूरा आ रहा है। चलो ग्रेविटेशन तो तुम्हारे संडे को ही खत्म करा दूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास में। लास्ट क्लास में बट हमने आधा कर लिया था। इस संडे तो पेपर नहीं है, टेस्ट। कौन सा पेपर रखा है मैंने, मैथ्स वाला? नहीं नहीं, मैथ्स वाला तो अब हो नहीं रहा क्योंकि मैम ने ड्राइंग का रख दिया। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स और वाला? आपने लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी का रखा हुआ है। तो ऐसा कर लो ना, टेस्ट बाद में दे दो, क्लास के बाद में, ऐसा कर सकते हो? सर मेरे प्रैक्टिकल शुरू हैं, मुझे उनके लिए भी करना है। नेक्स्ट वीक पूरा प्रैक्टिकल है हमारा। 4th तक प्रैक्टिकल है और 6 से पेपर है। फिर कैसे करोगे? लॉज ऑफ मोशन का उसका टेस्ट देना तो बड़ा जरूरी है वैसे। तुम्हारा फिजिक्स एग्जाम कब है? सर 9th को।
तो उसके बाद दो, या तो फिर मतलब इस संडे, अगले संडे दे दो। ओके सर, फर्स्ट को। हाँ हाँ ऐसे ही है, फर्स्ट सेकंड को ही, ठीक है। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था हमने अभी तक। वह फॉर्मूला बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज समेशन MI/RI स्क्वायर। I is 1 to n। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट मासेस हैं, एक 25 kg का है, दूसरा 10 kg का है। दोनों के बीच का सेपरेशन है 3 मीटर। मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं। एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस नंबर 3 है, और तीसरा ये है। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2 एंड एक्सिस नंबर 3। ये करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3। एक पार्ट में कर देता हूं वैसे। जब मैं एक्सिस नंबर 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, इस सिस्टम में दो मासेस हैं, एक है 25 kg, दूसरा 10 kg। एक्सिस नंबर 1 का डिस्टेंस M1 से कितना है, 10 kg का डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, 3 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा। दूसरा वहां से 25 kg, 25 kg का इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0। तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस नंबर 1 विल बी 90 kg मीटर स्क्वायर। Moment of inertia does not have any direction। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया सिस्टम का अबाउट एक्सिस नंबर 1। सिमिलरली अब सेम सिस्टम का एक्सिस नंबर 2 के अबाउट निकालो। सर हाँ। 2 का 110 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड एक्सिस का, सॉरी। हाँ, और सेकंड का 100 kg मीटर स्क्वायर। एक्सिस नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस नंबर 2 हमारा ये वाला है। तो इसमें M1 है 10 kg, 10 kg का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। 25 kg का डिस्टेंस कितना है, 3, हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0 प्लस 25 इंटू 9, 225, हो जाएगा 225 kg मीटर स्क्वायर। थर्ड वाला देखो अब क्या आ रहा है, 110। थर्ड वाले में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है ना। थर्ड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जो 10 kg उसका डिस्टेंस कितना है, 1। 25 kg का डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, 2। सो I3 विल बी 100 प्लस 25 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, सॉरी 10 हुआ ना, 100 नहीं हुआ। 10 प्लस 200, नहीं, 25 इंटू 400 हो गया, 110 kg मीटर स्क्वायर। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे सिस्टम तो वही है। द सिस्टम वॉज बेसिकली 2 पॉइंट masses, one 25 kg, another 10 kg, separated by 3 मीटर। तीनों केसेस में सेम सिस्टम है,
लेकिन सेम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड द एक्सिस। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ रहा है बताना मुझे? इसका आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि इस वाले पार्ट में द मास इज द फार्देस्ट, द मास इज द फार्देस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम। ठीक है, तो जितना मास दूर होगा सिस्टम से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। लिख लो, लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी will be maximum, will be maximum when mass is distributed away, mass is distributed away, mass is distributed away from the axis। जितना मास एक्सिस से दूर सिचुएट होगा उतने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ एक्सिस। चॉइस ऑफ एक्सिस पे भी डिपेंड कर रहा है कि हमने ये वाला एक्सिस लिया, ये वाला एक्सिस लिया, ये वाला एक्सिस लिया। समझ में आ गया नन्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज वी हैव 4 point masses connected by 4 massless rods। This is 2 meter और एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। और ये जो मासेस हैं वो हम ले लेते हैं 5 kg, 10 kg, 6 kg, 8 kg। If you want, you can name them also A, B, C, D. So A, B, C, D is a system consisting of 4 point masses 5 kg, 10 kg, 6 kg, 8 kg। और जो these are connected by 4 massless rods each of length 2 meter। ये सारा 2 मीटर है। These lengths are 2 meter। अब पहला क्वेश्चन है दैट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए बी। सपोज कोई एक्सिस ए बी से पास कर रहा है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट कर लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस passing through AB। AD सॉरी, हाँ AB भी कर लो, ये AB है। AB भी करना है, AD भी करना है। और एक ये वाला भी करेंगे। 3 एक्सिस बना दिए। AB के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर AD के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस BD। इतना एक बार कर लो।
ए बी वाले केस में सारे डिस्टेंसेस ए बी से मेजर होंगे, ठीक है। व्हेन यू फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, all the distances will be measured from the line or axis AB. सारे distances AB से चेक कर लेना कैलकुलेशन। With the axis AB, सारे masses का distance हमें AB से लेना पड़ेगा, perpendicular distance। AB is this axis, ये वाला axis है। This is the axis AB। तो इस वाले में क्या देखो क्या हो रहा है, A का डिस्टेंस AB से 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 स्क्वायर हो गया। B भी इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, B का भी 0 हो गया। 6 kg का डिस्टेंस कितना है, बी ए बी से 2। 8 kg का डिस्टेंस भी 2 है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो क्या आंसर आ रहा है, 24 प्लस 32, 56 kg मीटर स्क्वायर। So moment of inertia of the system about AB, this axis is this। नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला है AD। AD के अबाउट निकालो, क्या अनन्या? सर फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा। AD है ना, ये वाला एक्सिस है ये। यस सर। चारों मासेस का अपना अपना डिस्टेंस निकाल लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर करके, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर, दैट्स इट, हो जाएगा। हर मास का डिस्टेंस AD से निकालना है, जो AD लाइन है जो एक्सिस A और D से पास कर रहा है। AD में ये लाइन है ना हमारी, ये A है ये D है, तो ये एक्सिस है। तो AD में क्या है, 5 का डिस्टेंस 0 हो गया। B का डिस्टेंस कितना है, B का डिस्टेंस से कितना है, ये 2 मीटर। C का डिस्टेंस कितना है, अगेन 2 मीटर। और D का डिस्टेंस कितना है, D तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये जाएगा 40 प्लस 4 इंटू 6, 64 kg मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है BD। BD के लिए तुम्हें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। BD भी कर लो, और फोर्थ पार्ट करोगे पासिंग थ्रू O। O क्या है, O is this, O is this axis perpendicular to the plane of the body। IO है perpendicular to the square ABCD।
पहले बीडी निकालते हैं, ठीक है। बीडी के लिए बी और डी का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मुझे सी और ए का निकालना पड़ेगा। आई नीड टू फाइंड ए सी। ए सी डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए सी स्क्वायर वुड बी, पाइथागोरस लगा दो, 2 and 2। ए सी कितना हो जाएगा? 2√2। लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमें चाहिए एओ डिस्टेंस चाहिए, सीओ डिस्टेंस चाहिए। तो एओ डिस्टेंस एंड सीओ डिस्टेंस आधा हो जाएगा। एओ इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू सीओ इज इक्वल टू डीओ, एंड इट विल बी हाफ ऑफ ए सी। √2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आईबीडी निकाल लेते हैं। आईबीडी में ए का डिस्टेंस कितना है? 5 kg का डिस्टेंस है, √2। ये वाला डिस्टेंस √2 हो गया। तो ये 90 डिग्री पे करेगा ना बाइसेक्ट। बी का डिस्टेंस कितना? बी तो उससे पास ही कर रहा है, 0 हो गया डिस्टेंस। सी का डिस्टेंस कितना है? ये भी √2 हो जाएगा, और डी तो उससे पास ही कर रहा है। तो क्या आंसर आएगा? 5 × 2 10 + 0 12 + 0 22 kg मीटर स्क्वायर। अब जो लास्ट एक्सिस है वो इस ए बी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्सिस है लास्ट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। द लास्ट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द, अगर मैं इसका 3D व्यू बनाऊं तो 3D ऐसे बनेगा, ए बी सी डी, ये ओ है, ओ के परपेंडिकुलर है, ओ से पास कर रहा है। आई ओ बताना कितना आ रहा है भव्या? 58। पता नहीं, भव्या कर लिया? सर लास्ट स्टेप पे हो, एक सेकंड। आई ओ में ए हो गया 5 × √2 का स्क्वायर, 10 × √2 का स्क्वायर, 6 × √2 का स्क्वायर, एंड 8 × √2 का स्क्वायर। तो 10 + 20 + 12 + 16 कितना हो गया? सर 30, 58। 58। So this is 58 kg meter square. That's how you find moment of inertia of a body, discrete body made of large number of particles. अब कुछ कंटिन्यूस बॉडीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन पहले कोर्स में हुआ करता था, बट अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। द डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द कोर्स, सिर्फ सम फॉर्मूला, सम रिजल्ट्स आई राइट ऑन द बोर्ड। लिख लिया अनन्या? लिख लिया? यस सर। ओके। और इनफैक्ट दो थ्योरम भी थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो भी शायद अब कोर्स में नहीं है, एक बार देखना भव्य, तुम्हें कराया वो रोटेशन में? नहीं सर। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है सर। नहीं है ना? एनसीईआरटी में तो नहीं है। हम्म, चलो फिर तो सिलेबस और भी कम हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं बचा फिजिक्स में। ठीक है, तो दो थ्योरम्स आर आल्सो नॉट देयर।
नहीं है, वो भी लग रहा है। राइट। कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स लिखो। नंबर वन, ring. So if you have a ring, then moment of inertia about this axis. So this is R. Mass of the ring is this. तो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज हाफ mr²। हालांकि डिस्क का रेडियस, डिस्क रिंग का रेडियस सेम है, मास ऑफ द बोथ द बॉडीज इज सेम। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज रिंग में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में साइड में, या नोट करके लिख लो। इफ ए रिंग एंड डिस्क, if a ring and a disk have if a ring and a disk have same mass but but different, same mass and same radius, same mass and same radius, moment of inertia moment of inertia of a ring moment of inertia of a ring is more because masses distributed away from the axis. Because in a ring, masses distributed away from the axis. बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्क में मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि वो एक वही मास इन द केस ऑफ ए रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो जितना मास दूर होगा एक्सिस से, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। थर्ड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इसका रेडियस आर है, इसका मास है m। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। So moment of inertia of a solid cylinder is 1/2 mr²। It is the same as that of a disk। जो moment of inertia disk का होता है वही moment of inertia इसका है। Next, hollow cylinder। hollow cylinder में क्या होगा?
हॉलो सिलेंडर में अंदर से खाली है, ठीक है। जैसे हॉलो सिलेंडर अंदर इज एम्प्टी, बी सेम एज रिंग। नाउ यू नोटिस वन थिंग, सिलेंडर में चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों में एल फॉर्मूले में फिगर आउट नहीं हो रहा है ना। लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो फॉर्मूले में नहीं आती है, दिस इज अ रूल। तो सिलेंडर की हाइट से इंडिपेंडेंट है ये। सिलेंडर की हाइट कम हो या ज्यादा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ थिन रॉड। if you have a thin rod of length L, mass M, तो moment of inertia of the rod about axis passing through the center of the rod। डायग्राम बनाओ, moment of inertia of a thin rod about an axis passing through center of the rod। You can say perpendicular bisector है ना। This axis is basically perpendicular bisector। ये perpendicular bisector क्यों है? Because ये लेंथ भी L/2 है और ये लेंथ भी L/2 है। इसका जो मास्टर ब्लास्टर है वो है 1/12 ml²। इसी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through one of the ends is different। length L, mass M। अब मुझे बताओ, एंड के अबाउट कम होगा या एंड के अबाउट ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अभी निकाला तुमने, अबाउट दिस इज 1/12 ml²। इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? कम होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए? ये ज्यादा होना चाहिए बिकॉज मास अब एक्सिस से दूर सिचुएटेड है। ये वाला मास सारा का सारा बहुत दूर है इससे, जबकि उसमें मास मैक्सिमम डिस्टेंस L/2 पे सिचुएटेड था। तो जब मास अवे फ्रॉम द एक्सिस होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, इट इज 1/3 ml²। लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ ए थिन रॉड about one of its ends is 1/3 ml²। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। किसी भी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर is
2/5 mr². ये सारा इंटीग्रेशन से डेराइव होते हैं फॉर्मूले. दे यूज्ड टू बी देन योर सिलेबस अर्लियर. सारे अब डिलीट हो गए. 2/5 r². Now you have a hollow sphere, thin hollow sphere. थिन hollow sphere का ज्यादा होगा कम होगा? A thin hollow sphere, same mass, same radius. लॉजिक लगाओ. इस बार मास सारा का सारा सरफेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो जब मास दूर होता है तो ज्यादा होना चाहिए. यहाँ तो सारा मास पूरे में था ना डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें तो दूर चला गया मास, तो बढ़ जाएगा. ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिख लो. ये सारा लिख लिया ना? रेडियस ऑफ गायरेशन करा है भव्या तुम्हें? सर अभी मैंने ना पिछले आई थिंक ट्यूसडे का काम मुझे मांगना है, तो उसमें मैं चेक करके आपको बता दूंगी. हम्म. ठीक है, आगे बढ़ो. आगे बढ़ते हैं. Kinetic energy of rotation. This is derivation worth 3 marks. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का 3 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है. लिखो. कंसिडर consider a rigid body. Consider a rigid body of point masses consisting of. Consider a rigid body consisting of point masses m1 m2
m3 dash 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 mn, consisting of point masses m1, m2, m3 dash 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 mn as shown in figure. The distances, आगे लिखो, the perpendicular distances, the perpendicular distances, the perpendicular distances of these point masses, the perpendicular distances of these point masses are r1, r2, r3, small r1 लिखना, ठीक है, small r1, r2, r3 dash dash rn, r, r1, r2, r3, rn respectively. This rigid body, आगे लिखो, this rigid body is rotating. This rigid body is rotating with angular speed omega, w, small w को omega बोलते हैं. This rigid body is rotating with angular speed omega as shown in figure. और ये डायग्राम बना लो. ये डायग्राम बनाओ. एक ऑब्जेक्ट है जो कि n पार्टिकल से बनी हुई है, m1, m2, m3 dash dash mn. This rigid body is rotating about this axis. तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जैसे कोई फैन है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये फैन का ब्लेड है मान लो, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है मान लो, तो इसका लीनियर वेलोसिटी होगा r1 इंटू ओमेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी होगा r2 इंटू ओमेगा, राइट. सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना हमने, मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आ रहा है, डिराइव भी किया था. तो ये v इक्वल टू आर ओमेगा जो डिराइव किया था, लीनियर वेलोसिटी इज r इंटू ओमेगा. इसका मतलब इस सिस्टम में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है. तो अगर मुझे इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, v1 वो हो जाएगी r1 ओमेगा, सेकेंड पार्टिकल की हो जाएगी r2 ओमेगा, थर्ड पार्टिकल की हो जाएगी r3 ओमेगा. तो थोड़ा सा वो लिख लेते हैं. v1 इज स्पीड, लीनियर लिख लो यहाँ पे, ऑफ मास m1 कितनी होगी, r1 ओमेगा. v2 क्या होगा,
स्पीड, लीनियर स्पीड ऑफ मास m2, ये r2 ओमेगा, फिर v3 की कितना होगा, डैश डैश vn वुड बी rn इंटू ओमेगा। हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। एवरी पार्टिकल वुड हैव लीनियर, डिफरेंट लीनियर स्पीड। एक बार गो थ्रू कर लो। हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, because the body is rotating, so when the body is in motion it has energy of rotation, kinetic energy of rotation। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी वेक्टर स्केलर है। अनन्या, काइनेटिक एनर्जी स्केलर वेक्टर? हम्म। तो अगर हमें सिस्टम की या पूरे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम क्या करेंगे? हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर लेते हैं, है ना? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक रोटेशन कितना हो जाएगा? m1 का काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3 एंड डैश डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ mn। ठीक है, लिख लो। हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल के उनको हमें ऐड करना होगा। लिखो एक बार इतना। ये जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर, हाफ m3v3 स्क्वायर डैश डैश डैश, हाफ mn स्क्वायर, vn स्क्वायर, सॉरी। हमने सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? v1 v2 vn को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस v1 बाय r1 ओमेगा, v2 बाय r2 ओमेगा, इनसे रिप्लेस करो। नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस क्या आएगा? r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है अनन्या? हाँ। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो हाफ कॉमन आ रहा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर। क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। यहाँ पे टिल mn rn स्क्वायर। 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया,
अब जो जरा बताओ, जो ब्रैकेट में क्वांटिटी वो क्या है? ½ m1 r1 स्क्वायर, सॉरी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट समेशन mi r स्क्वायर। करा था ना अभी? किसके इक्वल है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक ऑफ रोटेशन का हमें फॉर्मूला मिल चुका है। ये बन जाएगा आई, ये हो जाएगा ओमेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, R is for rotation, is half I omega square. Kinetic energy of rotation is half I omega square. I is moment of inertia, omega is angular speed. डेरिवेशन समझ में आ गया? भव्या, यस सर। तुम स्कूल नहीं जाती आजकल? क्लास मिस करी हो फिजिक्स की? नहीं सर, जा रही हूँ। बोल रही हो ना मैंने नोट्स लिए नहीं किसी से। सर, मंडे छुट्टी थी, उसके अगले घर पे गेस्ट आए होते, इसलिए अगले दिन नहीं गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हमारे घर में स्कूल में आईआईटी दिल्ली का एक प्रोफेसर भी आए थे। साइंस वीक का डे वो था, अच्छा आज लास्ट दिन। ओके। एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया and kinetic energy. Find moment of inertia and kinetic energy of a sphere of mass solid. Find moment of inertia and kinetic energy of rotation of a solid sphere of mass 20 kg, radius 25 centimeter, radius 25 centimeter, rotating about its diameter, rotating about its diameter with a frequency 14 cycle per second. 14 cycle per seconds. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दे रखा है, एफ दे रखा है 14 साइकिल्स पर सेकेंड। करो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड्स फिर बताया था ना मैंने अभी, 2/5 r²। रेडियस दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो।
हम्म, फिर काइनेटिक एनर्जी भी निकालो। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ओमेगा इज angular speed which is 2 pi f, f is the frequency, f 2 pi by t होता है ना, 1 by df होता है। हम्म, हो गया। नहीं सर। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मास कितना 20 kg, आर कितना था 25 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं अभी। 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 25/100 हो गया है ना। 2500 100 का मतलब हो गया 1/4। तो 5 से 40 काट दो, 8। 1/4 कितना हो गया, स्क्वायर 1/2 आ रहा है आंसर। यही है ना। हाफ 2/5 mr² था ना। हाँ, तो तब भी वही आंसर आएगा, बाय 100 भी तो करना पड़े। 0.0625, 0.0625। अगर तुमने 25/100 का स्क्वायर किया, इट इज 0.25 का स्क्वायर, इट वुड बी 0.0625 इंटू 8 कितना आएगा, वही आएगा 0.5। अब मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तुम्हें, फ्रीक्वेंसी कितनी दी, 14 साइकिल पर सेकंड, सीपीएस। तो इससे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। इट्स 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वो करना पड़ेगा तुम्हें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है, आई इज 0.5 और 1/2। ओमेगा कितना है, 2 पाई एफ, 22/7 इंटू 14 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 0.25। ये कितना हो गया, 88 का स्क्वायर। 0.25 को आई कैन ऑल्सो राइट 1/4।
तो 22 इंटू 88 जूल कितना आ रहा है सॉल्व करके? 22 इंटू 88 किया किसी ने? हम्म 22 इंटू 88 कर लिया? सर 1936। 1936 जूल। ठीक है, तो जो आज की उसको रिवाइज कर लेना। वेडनेसडे वाली क्लास में टॉर्क पढ़ लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। जो भी आज किया उसको डेरिवेशन याद कर लेना, और ट्रेमोर न्यूमेरिकल्स। और संडे वहां पे मैं तुम्हें ग्रेविटेशन वाला वो आगे का पार्ट, केपलर्स लॉ जो बचा वो करा दूंगा। केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी बचा हुआ है ना। अनन्या तुम्हारा तो सिर्फ वही आ रहा है ना, ग्रेविटेशन, रोटेशन तो आ नहीं रहा है ना। यस हम्म, लेकिन अब मेहनत करना शुरू कर दो, डेरिवेशन याद करो, वो लेके आना संडे वाली क्लास में, पेपर और आंसर। यस सर। ओके, ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।